اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اطاعت کے اثرات. حضور والا، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا علیہ السلام کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، صاحبان امر کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے ذہنوں پر، ہمارے وجود پر، ہماری روحانیات اور معنویات پر مرتب ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو مانا بھی ہے اور پہچانا بھی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے ماننے کا اثر ہمارے وجود میں دکھنا چاہیے. جیسے ہم نے مثالیں دی تھی کہ اگر ہم نے اللہ کو کہہ دیا اللہ اکبر، تو پھر اب اللہ کے مقابلے میں ہم کسی اور کے سامنے سر تسلیم ہم نہ کریں. کیونکہ ہم نے جب اللہ کو بڑا مان لیا، افضل اور اکبر مان لیا، تو اب اس کے اثرات ہمارے وجود میں دکھنے چاہیے. بعض جیسے اللہ والے ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیے تو چاہے یہ سماج میں ہو یا معاشرے میں، گھر میں ہو یا تنہائی میں، جتنا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ایک معاشرے میں رہے گا، اتنا ہی تنہائی میں اور اکیلے گھر میں بھی پایا جائے گا. اس کے برخلاف آپ نے بعض افرادوں کو دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں، سماج اور سوسائٹی میں، یعنی ان کی شخصیت اور ان کی پہچان الگ ہوتی ہے، اور جب یہ اپنے گھر میں یا فیملی میں یا اپنی پرسنل یا پرائیویسی لائف میں جب دکھتے ہیں تو ان کی شخصیت جدا گانا دکھتی ہے. اب جب شخصیت الگ الگ دکھتی ہے تو کیا خدا بدل گیا، نظریہ بدل گیا، اللہ کی اطاعت بدل گئی، پیغمبر کی اطاعت بدل گئی؟ تو کہا جائے گا نہیں، نہ پیغمبر کی اطاعت بدلی نہ اللہ کی اطاعت بدلی، بلکہ یہ انسان کا دو رخی چہرہ جسے ہم نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، معاشرے میں کچھ ہے، گھر کے اندر کچھ ہے، گھر کے اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے. تو ایسے لوگوں کو یعنی یہ کہا گیا کہ صاحب آپ یہ جو نفاق کی چادر ہے اس کو کیا کر دیجئے، ہٹا دیجئے. اب اسی طریقے سے بہت سارے افراد آپ نے سماج میں دیکھے ہوں گے، جیسے میں ادھر 2-3 جمعے سے مسلسل اس چیز کے اوپر گفتگو کرتا آ رہا ہوں کہ بہت سارے افراد ہمارے سماج میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو جمعہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب میں تو کون ہوں، میں فلاں ہوں، اور میں تو جمعہ ڈائریکٹ امام کے پیچھے پڑھ لیں گے اور بقیہ ہمیں کسی کے پیچھے پڑھنے ہونے کی ضرورت.
नहीं है। और उसके बाद दलील उसी की देंगे कि साहब चौथे इमाम ने कहा कि आले मोहम्मद के लिए कहाँ ईद है, कहाँ बकरीद है, कहाँ कोई खुशी है, कहाँ कोई कुछ है, इसलिए कि हमारा गम सबसे बड़ा है। अल्लाह के बंदे, मासूमीन की हिकमत को, मासूमीन के कलेमात को, मासूमीन के इरशादात और फरमोदात को उस जाविये से देखिए जिस जाविये से हमारे आइम्मा ने क्या किया है, बयान किया है। लेकिन चूंकि हम उस जाविये से ना देखना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जहनों में जुमे से फरार अख्तियार करना पहला मौक़िफ़ है, ताकि हमें जुमा ना पढ़ना पड़े और कोई हमारे ऊपर ब्लेम भी ना लगाने पाए, साहब आप कैसे मोमिन हैं जो जुमा नहीं पढ़ते हैं। तो अब हमें अपने मोमिनियतपन को भी बचाना है और जुमा भी नहीं पढ़ना है। तो दलील सबसे अच्छी क्या होनी चाहिए? साहब आज के दौर में जुमा वाजिब नहीं है, हम तो किसके पीछे जुमा पढ़ेंगे? इमाम के पीछे पढ़ेंगे। इमाम को गैबत में गए हुए कई सौ साल हो गए, बोलिए जरा सा। इमाम गैबत में, गैबत सुगरा में गए सन 260 हिजरी से लेकर के 329 या 331 हिजरी तक, यानी 70 साल या 72 साल, ये गैबत सुगरा का जमाना था। उसके बाद सन 329 या 331 से लेकर के आज 1446 हिजरी चल रहा है। तो ये 1446 हिजरी में देखा जाए तो इमाम को गायब हुए, पर्दे गैब में गए हुए कैसे साल हो गए? तकरीबन देखा जाए तो 1200 साल के अल्ले पल्ले 1100 कुछ 88 साल के आसपास हो रहा है, सही है ना? तो इमाम इतने पीछे, इतने सालों से हमारे दरमियान नहीं है। इतनों में कई पीढ़ियां आई और चली गई इसी उम्मीद पर, साहब हम तो जुमा किसके पीछे पढ़ेंगे? इमाम के पीछे पढ़ेंगे। अब आप जरा सा अंदाजा कीजिए, क्या ये नजरिया सही है? दलील सही है? इस्तिदलाल सही है? आप कहेंगे नहीं। सही क्या है आप बता दिए। उसके बाद दूसरी दलील क्या देंगे? कहेंगे साहब हम मरजा उर्जा को नहीं मानते, फकीह को नहीं मानते, मुज्तहिद को नहीं मानते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब किताब एक, दीन एक, इस्लाम एक, पैगंबर एक, कुरान एक, सही है। उसके बाद इनका फतवा उठाइए, वो कुछ कहते हैं, उनका फतवा उठाइए, वो कुछ कहते हैं, उनका फतवा उठाइए, वो कुछ कहते हैं, उनका फतवा उठाइए, कुछ कहते हैं। तो जब दीन एक था तो फतवे और मसले बदल कैसे गए? चूंकि आपने नजरिया सही से नहीं लिया। कभी आप देखिए, जब एक डॉक्टर, अगर आप आम डॉक्टर को चुनिए, उसका नजरिया दवाओं के बारे में क्या होता है? मैं समझाना चाह रहा हूं कुछ बातें। उसका नजरिया क्या होता है? तो मालूम दिया बुखार है, सर दर्द है, ये है, वो है, उसने जनरल दवाएं दे दी। उसके बाद आपको कोई इफाका नहीं हुआ, आप और गए किसके पास? आप गए किसके पास? आप गए उसके पास कि साहब इनकी दवाओं से हमें फायदा नहीं मिल रहा है। जो स्पेशलिस्ट है उसको बताइए, जो एक्सपर्ट है उसको बताइए। अब जो डॉक्टरों में जो जिस मरज का डॉक्टर हो, एक्सपर्ट को चुनिए और चुनने के बाद
سب کے پاس اپنا مرض لے کر کے جائیے، سارے ڈاکٹر ایک دوا لکھ رہے ہیں تو بتائیے کیا میڈیکل بدل گیا، ڈاکٹر بدل گئے یا مرض بدل گیا؟ بولیے ذرا سا۔ اب یہ جو دوائیں الگ الگ، ایک ڈاکٹر صاحب ایکسپرٹ وہ بھی ہے، ایکسپرٹ وہ بھی ہے، ایکسپرٹ وہ بھی ہے، ایکسپرٹ وہ بھی ہے، لیکن یہ چاروں کو دکھانے کے بعد اگر چاروں کے دوائیں ایک ہوں، ایک ہی مرض کو آپ نے سب کو بتایا، تب تو کہیے صاحب ساری دوائیں ایک جیسی ہے، چاہے ہم اس ڈاکٹر سے لے لیں چاہے اس ڈاکٹر سے لے لیں، تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ یہ نہیں کہیے گا کہ ڈاکٹر غلط تھا، آپ کہیں گے تجربہ الگ تھا، ان کی ریسرچ الگ تھی، ان کی نالج الگ تھی، ان کی جانکاری الگ تھی، یہ امریکہ سے پڑھے تھے، یہ وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھے، یہ فلاں جگہ کی یہ ہے، یہ اب آپ خامیاں نکالنے کے بجائے آپ کیا کرنے لگے؟ ایڈجسٹ کرنے لگے۔ لیکن جب ایسے ہی مسئلہ دین میں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آیت اللہ کو چھوڑ کے خود آیت اللہ بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے اس چیز کو۔ تو وہ افراد جو کہتے ہیں صاحب دین ایک تھا، کتاب ایک تھی، فلاں ایک تھا، یہ ایک تھا، وہ ایک تھا، اس کے بعد فقہا میں، مجتہدین میں، مراجع کرام میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ اسی لیے میں تقلید نہیں کرتا۔ اسلام نے کب کہا آپ تقلید کیجئے؟ اسلام نے کہا آپ سب سے پہلی کنڈیشن پر مجتہد بن جائیے، آپ پہنچ جائیے وہاں تک۔ اسلام تو چاہتے ہی نہیں کہ آپ صاحب تقلید کیجئے، وہ کہتا ہے صاحب پہلی کنڈیشن پر آپ جائیے، کہاں پر؟ کہا مجتہد بن جائیے تاکہ لوگ آپ کی تقلید کریں، آپ کے اوپر تقلید کرنا واجب نہ رہے۔ کہا دوسری کنڈیشن اتنا پڑھ لیجئے کہ صحیح اور غلط چیزوں کو، حلال حرام کو سمجھ لیجئے۔ کہا محتاط بن جائیے، احتیاط پر عمل کریے۔ کہا جب یہ دو کنڈیشنیں تمہارے پاس نہ ہو تب کہا تقلید کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ امام کہتے ہیں، چھٹے امام صادق علیہ السلام، امام کہتے ہیں لاؤ میرے اصحاب کو، لاؤ میرے چاہنے والوں کو، لاؤ میرے ماننے والوں کو، میں ان کی گردنوں پر کوڑے ماروں۔ مولا کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ یہ کیا کر سکیں؟ دین سمجھ سکیں۔ یعنی امام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ آسانی سے دین نہ سمجھ رہے ہوں تو دین کو سمجھانے کے لیے سختی بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سختی کا مطلب مارنا پیٹنا ہی ہو، لیکن آج آپ ذرا سا وہ کر لیجئے، ہم تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں کسی چیز سے بچنا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں فلاں مولانا کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، میں تو ان کو عالم مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، یہ تو مومن بھی نہیں ہے۔ امامہ پتہ نہیں کہاں سے لگا کر کے لے کر کے آ گئے، ایسے لگتا ہے جیسے مرجع یہی ہو، امامہ یہی رکھتے ہوں۔ ایک صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ یعنی اعتراضات بہت ہو سکتے ہیں لیکن صحیح جوابات نہیں۔ تو عزیزوں، عوام الناس میں کنفیوژن کریٹ نہ کرو، لوگوں کو دین سے غافل نہ کرو۔ اگر تمہاری نظر میں اختلافات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم یہ نہ کہو کہ یہ دین نہیں بتلا رہے ہیں، کیونکہ اسلام چند احادیثوں کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام چند آیتوں کے جان لینے کا مجموعہ نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے اور قرآن کا ترجمہ پڑھتے جائیے، اس کے بعد ہم آپ سے کہیں اسی قرآن کو پڑھیے، ذرا سا بتا دیے وضو کیسے کیا جاتا ہے،
इसी कुरान को पढ़िए जहां पर कहा गया अकीमुस सलात, वहां पर आप जरा सा इसी कुरान से साबित करिए नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तर्जुमा पढ़ करके भी नहीं बता पाओगे कि कुरान से नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसी एक ऐसे जानकार की, कि जो जानने वाला हो, जो तुम्हें बतलाने वाला हो, और उसी जानकार का अगर तुम इनकार कर दोगे तो दीन किससे लोगे? दीन तुम्हें कहां से मिलेगा? तुम तो ये कह के बैठ गए कि साहब हम तो जुमा पढ़ेंगे किसके पीछे? इमाम के पीछे। कहा क्यों? इसलिए कि साहब ये लोग कहते हैं साहब ये जुमा, एक कहता है हराम है, एक कहता है वाजिब है, एक कहता है मुस्तहब है, एक कहता है वाजिब तखीरी है। चाहो तो तुम जुमा पढ़ लो, चाहो जोहर पढ़ लो, चाहो ये पढ़ लो, चाहे वो पढ़ लो। अब जब भैया इन्हीं में इख्तिलाफ है तो हम ही सबसे अच्छे हैं, जुमा नहीं पढ़ेंगे। तो ये तुम्हें सनद कहां से मिल गई कि साहब तुम जुमा नहीं पढ़ोगे? अब सुनिए हदीस में पैगंबर के सुनाता हूं, एक सलवात पढ़िए समझ लो। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक हदीस सुनाई थी कि जिसमें इमाम ने कंडीशन एबल एक हदीस को बयान किया था, जिसमें ये कहा था कि ला जुमाअता इल्ला मा'a इमामिन आदिलिन, यानी जुमा वाजिब नहीं है मगर इमाम आदिल के पीछे। ये कंडीशन एबल है। कंडीशन क्या थी? पैगंबर के बाद से लेकर के मौलाए कायनात 25 साल खामोश रहे। सन 40 ईस्वी के बाद से लेकर के 256 तक, 11वें इमाम तक, उसके बाद 12वें इमाम तक, उसके बाद जमाने गैबत सुगरा, गैबत कुबरा, इमाम को मौका ही नहीं मिला जुमा पढ़ाने के लिए। और प्रोपेगंडा और साजिशें ये थी कि साहब अपने अकीदे को बचाना था, दीन को बचाना था, इमाम की हिफाजत थी, शियों की हिफाजत थी। और जहां पर अकीदे को खराब किया जा रहा था, जहां पर हुकूमत की बातें पहुंचाई जा रही थी, जहां की हाकिम की वाहवाही की जा रही थी, जहां पर हाकिम अपना वो दीन देना चाह रहा था जो वो चाह रहा था कि लोग उस दीन से आशना हो जितना हुकूमत चाह रही थी, तब इमाम ने कहा था कि जुमा पढ़ना वाजिब नहीं है अलैहिस्सलाम, मगर ये कि इमाम आदिल के पीछे। अब इस हदीस को आपने लाकर के चिपकाया कहां पर? यहां पर। चलिए इस हदीस को आपने ले लिया, एक हदीस में पैगंबर से सुनाता हूं। पैगंबर कहते हैं, पैगंबर कहते हैं मन तरका सलासता जुमुअतिन, यानी जो शख्स 3 जुमा तर्क कर दे मुतअम्मिदन, जानबूझ करके, तो बे अल्लाह अला कुलूबिहिम, तो अल्लाह उसके दिल के ऊपर क्या कर देता है? मोहर लगा देता है। अब इसी मोहर लगाने को समझना है तो कुरान की आयत से समझिए, जहां पर कुरान ने बार बार कहा, यही कहा कि साहब इनके कल्बों के ऊपर अल्लाह ने क्या किया है? मोहर लगा दी है, लिहाजा अब इनकी समझ में अच्छी बातें आ ही नहीं सकती। फतोबे कुलूबिकुम, ये अगर वैसे आप देखिए हदीसें के जुमले हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर क्या कर दिया है? मोहर लगा दिया। कुरान की आयत इसी से मिलती जुलती है। अब इसी चीज को आप जरा सा कीजिए, एक तरफ आप कह रहे हैं साहब हम जुमा किसके पीछे पढ़ेंगे? इमाम आदिल के पीछे। पैगंबर क्या कह रहे हैं? पैगंबर कह रहे हैं कि अगर किसी ने 3 जुमा जानबूझ करके छोड़ दिया मुतअम्मिदन, अल्लाह इनके दिल के ऊपर क्या कर देगा? मोहर लगा देगा। अब जब मोहर लगा देगा तो मोहर अल्लाह किसी अहले गैरे को लगाएगा? उसके ऊपर लगाएगा कि जो इस्लाम से खारिज हो रहा हो, उसके ऊपर मोहर लगा देगा, यानी जिसकी रूह ईमान निकल गई हो या निकल रही हो, उसके ऊपर मोहर लगाएगा। अब जरा सा इसी से पूछिए
इन दोनों हदीसों को जरा सा जम करके बताओ, जुमा पढ़ोगे या जुमा नहीं पढ़ोगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि आज का ये जो नौजवान है ना, इसको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, इसको बहकाया जा रहा है। साहब अगर उलमा एक होते, खाली सिनफे उलमा को क्यों देख रहे हो, सारी सिनफों को देख लो। क्योंकि इस्तेमाल, जिनको इस्तेमाल करना चाहता है ना, उसका कोई दीन धर्म मजहब नहीं होता। अभी आप देखिए, लबनान का एक जासूस, मोसाद का एजेंट, इसकी वीडियो है करबला में बैने हरमैन। बैने हरमैन किसे कहते हैं? यानी वो जगह की जो मौला अब्बास और इमाम हुसैन इस्लाम के हरम के बीच की जगह है, उसे कहते हैं बैने हरमैन। वहां पर ये नौहा भी पढ़ता है, वीडियो मौजूद है, लोगों को दावत भी देता है, लोगों को समझाता भी है, और इसका साबिका भी बहुत अच्छा है। जिसके वालिद हिजबुल्लाह में शहीद, इसके भाई वगैरह जो हिजबुल्लाह की एक ग्रेड फौज थी जिसे रिजवान फोर्स कहा जाता है, उसमें, और ये यही करबला में इसकी मुलाकात एजेंट के जरिए हो गई। इसने वो खुफिया राज जाहिर कर दिए कि जिसके जाहिर करने की बुनियाद पर इसे पैसा दिया गया, तकरीबन $23,000 से लेकर के $35,000-40,000, क्या वैल्यू है इसकी। लेकिन कितने अहम अहम शख्सियतों को इसने मरवा दिया। ये मैं पढ़ता नहीं, लेकिन पढ़ किस लिए रहा हूं? इसलिए पढ़ रहा हूं कि किसी को हरम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अगर नौहा, कसीदा, मल्लिस या कुछ भी पढ़ते हुए देख लेना, तो उसकी अंधी तकलीद और अंधविश्वास ना कर लेना। क्योंकि इंसान बहकाने के लिए हमेशा सच का लबादा पहनता है, झूठ का लबादा कभी पहनता नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने अखबारियत ज्यादातर पनप रही है, या मालूम दिया MI6 ज्यादा पनप रही है, या मर्जा की मुखालफत ज्यादा हो रही है, आप जाकर के तलाशिए कि कहां के उलमा ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं इन चीजों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ारत पर मिलने वाले ज़ारत तो हमें करा रहे हैं, ज़ारत नामा तो हमें पढ़वा रहे हैं, उसकी उजरत हम उन्हें डॉलरों की सूरत में उन्हें दे तो रहे हैं, लेकिन वो हमारा ईमान भी ले जा रहे हैं, अकीदा भी ले जा रहे हैं, अमल भी ले जा रहे हैं, दीन से बेदीन भी किए दे रहे हैं, नमाजों से गाफिल किए दे रहे हैं। जुमा कहते हैं पढ़ना वाजिब नहीं, मैं तो इमाम के पीछे। अल्लाह के बंदे, इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब ये सादा लो आवाम को सबसे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि सादा लो आवाम को पता ही नहीं चलता साजिश किसे कहते हैं और खुलूस किसे कहते हैं, मक्कारी किसे कहते हैं और साफ दिली किसे कहते हैं, इसे पता ही नहीं चलता। लिहाजा इन चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि आप वही तेज भी निगाहें रखें कि दुश्मन पनप कहां से रहा है। क्योंकि हमारे यहां आज मिंबर आजाद हो गया है, जिसको चाहो हर ऐरे गैरे को मिंबर पर बिठा दो, जिसकी शीन और काफ दुरुस्त ना हो, जिसको अलिफ से अल्लाह ना आता हो, जिसको अल्फाबेट सही से उर्दू के ना आते हो, जो हिंदी में लिख करके पढ़ता हो, वो बताएगा कि उर्दू की ग्रामर क्या होती है, अरबी की के अदबियात क्या होते हैं वो बताएगा। वो आकर के बताएगा मर्जा की ताकत क्या होती है, मर्जा किसे कहते हैं। सोचिए जरा साहब,
समझ रहे कि जहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीजें पाई जाती हैं, तो हमें इससे क्या होना चाहिए? होशियार होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब हम होशियार होंगे तो वैसे ही दूरबीन निगाहें रखेंगे जैसे पैगंबर ने दूरबीन निगाहें रखी थी, जैसे पैगंबर ने दूरबीन निगाहें रख करके दीन को भी बचाया था, दीन को भी फैलाया था, जैसे दूरबीन निगाहें रख करके जुल्म को बर्दाश्त किया अली इब्न अबी तालिब ने, ताकि दीन बच जाए। आज सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम नाम तो लेते हैं, हम अहले बैत के दोस्तदार हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले, बेशक होगे चाहने वाले, लेकिन चाहने वाला होना और शिया होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चाहने वाला कोई भी हो सकता है, उसमें मजहब की कैद नहीं है, लेकिन शिया होने के लिए, इमामिया होने के लिए, शिया इमामिया होने के लिए, शिया इस्ना अशरी होने के लिए 12 इमामों की विलायत को मानना जरूरी है। अब जो लोग कहते हैं साहब तशहुद में बताइए हम अली वलील्लाह पढ़ें या ना पढ़ें, उनसे पूछिए खाली अली की विलायत की का ऐलान करोगे या 14 की विलायत का ऐलान करोगे? बोलिए जरा साहब, आप सो रहे हैं? नहीं, ये नहीं सो रहे हैं, आप बेफिक्र, ये मेरा जुमला है, मजाक कर रहा हूं। कभी आप सोचिए हकीकत में जो सो ना रहा उसको टारगेट बना दीजिए। समझ रहे हैं? अब मालूम दिया कि साहब बताइए पढ़ सकते हैं, अच्छी खासी नमाजें पढ़ते थे, अच्छी खासी हम जमात से में आते थे, अब उसमें एक शोशा पैदा कर दिया क्या हम अली की विलायत? बाबा जितना तुम्हें पैगंबर से मिल गया है उतना ले लो। मा आता कुमो रसूल फखुज़ूहु, पैगंबर जितना दें उतना ले लो, जिससे रोक दें वहीं पर रुक जाओ। अब अपना दिमाग ना लगाना कि हम तशहुद में अली वलील्लाह पढ़े ना पढ़े गवाही दे, ईमान अपनी जगह पर है। ईमान का हमसे अच्छा ईमान कौन रखेगा? लेकिन ईमान का मतलब ये नहीं है कि मालूम जहां चाहे मनमानी हम हर चीज को की कमी कर दे, हम हर चीज का इजाफा कर दे। काम नहीं, इजाफा आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कमी वाकई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अख्तियार पैगंबर को उनकी हयात में था, और जब अल-यौमा अकमलतु की सनद मिल गई तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब कुछ नहीं कर सकते तो ये सवाल ही गलत है कि हम तशहुद में पढ़ें या ना पढ़ें। सलवा पढ़िए सब मिल। अब गुफ्तगू को समेट करके नतीजा, पहला खुतबा उन्वान क्या था? इताअत के असरात। अब अगर हम अल्लाह की इताअत करेंगे तो अल्लाह ने जितना हुक्म पैगंबर को दिया था और जितना पैगंबर ने हमें बतलाया, हम ना उससे कम जाएंगे और ना हम उससे ज्यादा जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। ना हम उनसे कम मौलाई होंगे, ना हम उनसे एक्स्ट्रा वाले मौलाई बन जाएंगे कि साहब मालूम दिया पैगंबर ने विलायत का ऐलान कहां किया? अजानों में है, मुस्तहब्बात, जिसकी गवाही बाद में ये हुई है जब तकमील दीन हो गया है, पैगंबर मौजूद थे। जनाब सलमान ने अजान में इस जुमले को गवाही के तौर पर दिया। अब उसके बाद लोग कहने लगे साहब अजान का ये जुज है या जुज नहीं है। जुज़्वे अजान हो या ना हो, जुज़्वे ईमान है या नहीं है, और पैगंबर के सामने दिया गया। अगर एतराज होता तो पैगंबर ने मना कर दिया होता, अब पैगंबर ने मना नहीं किया तो जो चीज इमाम मासूम के सामने अंजाम पाई
پا جائے اور اس کی مخالفت امام معصوم نہ کرے وہ ہمارے لیے حجت بن جایا کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ توحید کا ہمارے اوپر اثر۔ اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور دوسرے خطبے میں ہم نے بہت ساری باتیں کہ اگر ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو اس وحدانیت کو اور اثرات کو ہمارے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ مرتب ہونا چاہیے اور دکھنا چاہیے۔ توحید، یکتا پرستی، خدا کو ایک ماننا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یعنی اگر ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ ایک لا کو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک موت آئے گی نہیں کوئی موت دے نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا۔ تو جب کسی کے اختیار میں موت ہے ہی نہیں تو ڈرنا کس بات کا؟ ڈر کس چیز کا؟ لیکن اگر آپ ذرا سا پلٹ کر کے دیکھیے تو ہمارے یہاں بہت سارے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ جیسے آپ کے ذہن میں ہو اللہ نے حکم دیا رزق حلال میں سے جو اللہ، رسول اور اہل بیت کا حق ہے وہ کیا کر دو؟ نکال دو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ صاحب جو اللہ رسول کا حق ہے وہ تو ہم نکالیں یا نہ نکالیں، اور ایک بہانہ تو اور تلاش لیا، خمس ہم اس وقت دیں گے جب ہمارا امام آئے گا۔ ایسے لگتا ہے یہ پورا پیسہ نکال کر کے اکٹھا کر رہے ہوں اور گٹری امام کو کیا کر دیں گے؟ کھپا دیں گے کہ صاحب مولا یہ سن 1980 کا خمس اتنا نکلا تھا، 1981 کا خمس اتنا نکلا، 1982 کا خمس نکلتے نکلتے 2025 میں خمس اتنا نکلا، اور ٹوٹل اتنا ہو گیا ہے، اور جب آپ ظہور کیجئے گا تو ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ اور چاہتے ہیں میاں آج کل تو ایمان اتنا ڈاماڈول ہو گیا ہے
कि 500 का नोट किसी को दे दिए कि साहब ये रख लीजिए, शाम में हम आपसे ले लेंगे। अब जब शाम होगी तो वो साहब किसी और शाम में मसरूफ हो जाएंगे, वो आपको शाम में नजर ही नहीं आएंगे। ना यकीन हो तो किसी को अपना पैसा दे करके देखिए, और उसके बाद शेखी बघाड़ने वालों को देखिए। साहब आप छिप करके अपना पैसा मांग रहे हैं कि साहब आपने पैसा लिया था, वापस कर दिया। अब अरे ये जुमे में हम दे देंगे। अब साहब अरे वो क्या बताएं, अभी नहीं बाद में ले लीजिएगा। अब जुमे वाले कहें यार ये शरीफ आदमी इतने थे, बताइए कौन सा कर्जा ये अपना मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं साहब बाद में ले लीजिएगा। यानी मालूम लिया जो बेचारा कर्जा देने वाला था वो मुजरिम हो गया, जिसने लिया था वो शान से शेखी बढ़ा रहा है, आज ले लीजिएगा, कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, नरसों ले लीजिएगा। आप कभी जानते हैं कि एक बुरे इंसान का धोखा दिया हुआ 10 सही इंसानों को उसके हुकूक पहुंचने तक माने हो जाता है। कभी आप इस चीज की तरफ तवज्जो देते हैं? इसीलिए शिया होने के लिए जो बातें इमाम ने कही थी, जानते क्या कहा था? इमाम ने कहा था कि अगर मेरे शियों को पहचानना है तो इनसे सिर्फ 2 बातों के जरिए इन्हें पहचानो। एक अव्वले वक्त नमाज की पाबंदी का, अगर मेरा शिया होगा तो नमाज अव्वले वक्त अदा करने का आदी होगा। इत्तेफाकन लेट हो जाए, ताखीर हो जाए, या हालात ना रहे या मौका ना रहे, वो अलग मीटर है। लेकिन हालत अख्तियार में यानी ये जितनी चीजें हैं, कहा पहली कंडीशन अव्वले वक्त, कहा दूसरी कंडीशन का साहब देखना मोमिन के साथ इसका लेन देन कैसा है, यानी मामलात। आज पलट करके जोही में देख लीजिए मामलात कैसे हैं, और सबसे बड़े मोमिन हैं। इमाम ने क्या कहा? हमारे शियों को पहचानना है तो कई बातों से पहचानो, 2 बातों से। एक अव्वले वक्त नमाज की पाबंदी, दूसरे वही मोमिन के आपस में लेन देन, यानी जो मामलात हैं इसके जरिए पहचानो। मियां जब 100 रुपए पर ईमान खराब हो, एक बीड़ा पान के ऊपर बिकने के आदी हो, एक बिरयानी, कभी कभी मैं सोचता था कि रिवायतों में मिलता था कि लोग जो थे अली के लश्कर में रहते थे और जाकर के शाम के दस्तरखान पे खा आते थे। मुझे यकीन नहीं होता था कि साहब ये कैसे मानने वाले और चाहने वाले थे कि साहब मानते अली को थे और खाना जाके कहां पर थे? शाम के दस्तरखान पर। लेकिन अब जब हमने यहां बहुत गौर से और डीप से देखा तो पता चला जितने पैसे मार करके बैठे थे, जिनके मामलात और हालात खराब थे, अब अगर वो एक चीज दावत कर दे तो जितने मोमिन हैं सब पहुंच जाएंगे। अरे कोई हम उनका थोड़ी खा रहे हैं, मौला का खा रहे हैं। मियां मौला के नाम पर ये धोखा दे रहा है, ईमानदार नहीं है। ईमानदार होता तो मामलात को साफ कर चुका होता। उसके बाद कहे साहब तौहीद हमारे ऊपर असर नहीं करती है, ये हमारे ऊपर असर नहीं करती है, हम अल्लाह को मानते हैं, मामलात बिगड़ते जाते हैं। या जब शिकम पाक होगा नहीं तो होगा क्या? अच्छी बात भी समझ में नहीं आएगी। वरना आप देख लीजिए अली के जमाने में, सुनिएगा, अली के जमाने में, मेरे पास 3 मिनट और हैं। अली के जमाने में जंग सिफ़ीन में 65,000 का मजमा था कम से कम। जो अली के रकाब में था, अली के पीछे नमाज भी पढ़ता था,
लेकिन नमाज पढ़ने के बावजूद भी आप बता दिए इसके मामला सही हो गए हों। नमाज किसके पीछे पढ़ा? अली के पीछे। रकाब में किसके था? अली के पीछे। लेकिन यही अली के रकाब में रहने वाला जब हमने तलाशा तो मालूम दिया करबला में यही अली की औलाद का कातिल नजर आया। अब आप जरा सा बताइए, अली की गलती थी? आप बहुत सारे अफराद इल्जाम यही लगा देते हैं ना साहब, अरे फला के साथ फला इंसान, बताइए ये थे कितने ईमानदार थे, कितने मुत्तकी थे। अगर ये मौलाना सही, मैं मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, ये मौलाना सही होते तो फला अफराद साथ ना छोड़ते। यही सवाल मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सिफीन में अली के पीछे नमाज पढ़ने वाले सब सही थे तो ये करबला में लश्कर यजीद में कहां कैसे नजर आ गए? समझ में आया? तो कभी अपने गिरेबान में झांको, दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने से अच्छा यह है कि गलतियां अपनी तलाशो, क्योंकि सुधरना हमें है, किसी दूसरे को हमें सुधारना नहीं है। लेकिन मुश्किल यही है कि हर कोई मौलवी को सुधारना चाहता है लेकिन खुद सुधरना। एक सलवात तो पढ़िएगा हमसे। आप जरा सा गौर कीजिए, नतीजा मैं दे रहा हूं सिर्फ मैंने इसीलिए हालात हाजरा को आप जरा सा समझिए, ताकि मेंटालिटी जो हमारी बन गई है या हमने बना लिया है, क्योंकि बुराइयां दूसरों में तलाश लेने से खुद की बुराई खत्म नहीं होती। जब तक शिया उस वक्त कहलाओगे, शियायान अली इब्न अबी तालिब उस वक्त कहलाओगे जब तुम्हारे मामलात बिल्कुल क्लियर हो। मामलात क्लियर नहीं होंगे, कुछ भी हो सकते हो, शिया नहीं हो सकते। अब लाख मौलाई कहो, लाख फला कहो, लाख अपने आप के सामने बड़ा बड़ा टाइटल लगा लो, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। क्योंकि इस्लाम किसी एक चीज का नाम नहीं है। इस्लाम सबसे पहले मामलात को देखना चाहता है। मामलात सही हो जाएंगे, इबादतें खुदा माफ कर सकता है, लेकिन मामलात को खुदा उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक जिसका मामला हो और वो माफ ना करे। तो अब हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी यह है कि अपने अपने हालात मामलात को सही कर ले, ताकि जब वक्त का इमाम आए तो हमारी गर्दनों के ऊपर किसी का बोझ, किसी का 1 रुपया बकाया रह के ना जाए। एक सलवा पढ़िए सब मिलकर के। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतबे इमामिया में होगी। आवाज़ कसीर तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा।